Namaskar. Wishing a very divine and glorious morning of this eternally divine and sacred day, Janmashtami. Yes, Kanha is going to be born very, very soon. This day, as we say, and as all of us actually know, is really so divine and it carries a very meaningful message along with it, which we need to carry with us along throughout the year. Because, as all of us know, that Lord Krishna is regarded as the first prince, the holy prince, whose 16 celestial degrees are really an excellent epitome of divine perfection. And as we say in Hindi, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी ahimsa paramo dharma maryada purushottam. So isn't it really divine? But my dear friends, one thing I would like to quote here, all these divine virtues, these five basic divine characteristics of Lord Kanha, they symbolize the real fragrance, the real divinity, which is an actually an excellent epitome of sundarta, that is the beauty of the soul. But one thing we really need to ponder on, and at the same time, it's actually very deep. We regard Kanhaiya as Krishan ji, and the and the literal meaning of Krishna is black, correct? And there is also a song where and it goes like this: Yashomati Maiya se bole Nand Lala, Radha क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला. So, my divine friends, we really need to ponder on such an excellent epitome of divine perfection, सर्वगुण संपन्न. तुमको हम ब्लैक क्यों दिखाते हैं? So, I believe we really need to try to take some divine learning from this. तो मैंने जब इस पर थोड़ा विचार किया, so I have reached to a point, like, see, हम उनको श्याम सुंदर भी कहते हैं. श्याम का मतलब है ब्लैक एंड सुंदर मीन्स गोरा, दैट इज ब्यूटिफुल. तो द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑन द सेल्फ and trying to invoke the real beauty from within while conducting our daily chores is the real essence, is the real beauty of the soul. Correct? And as all of us know, we are, as of now, living in the Iron Age, which we regard as the Kali Yuga, right? And we know that a lot of unpleasant things are happening around us in our atmosphere. But at the same time, we need to be positive. We need to remain positive. That is, कलयुग में रहते हुए सत्युग अपने अंदर से स्थापित करना है with an inside out approach. करेक्ट. तो वही है श्याम सुंदर की असली व्याख्या, कि हम अपनी सुंदरता को कैसे निखारें. एक और हिंदी में कहावत है विच स्टार्ट्स लाइक दिस, मुझे इसका वो पूरा आई एम अनएबल टू रिकॉल इट, बट वो है काजल की कोठरी में. ऐसा कुछ है ना कि आप काजल की कोठरी में जाएं तो आप थोड़ा बहुत ब्लैक आपके ऊपर उसका दाग लगेगा ही लगेगा, बट स्टिल आप पे वो लगेगा. बट आपको इस वर्ल्ड में रहते हुए इसकी इम्प्योरिटी आप
जो भी इम्प्योर सब्सटेंसेस बहुत हैं आजकल के वर्ल्ड में, बट स्टिल आप अपनी प्योरिटी को बार बार इन्वोक करें, अपनी ब्यूटी को बार बार अंदर से खुद से कनेक्शन करके, उनसे कनेक्शन करके उसको बार बार निखारने का ट्राई करते रहें, खुद से अंदर से पुरुषार्थ कुछ कुछ करते रहें। तो यही एक डिफाइन लर्निंग है, तभी हम कहते हैं श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। एंड वन मोर ब्यूटिफुल थिंग आई विश टू कोट हियर, इसी को हम कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुष मतलब सोल, करेक्ट, एंड अर्थ मतलब मीनिंग। तो whenever any soul tries to work on a self and thereby giving a meaning to one's own existence in a very very divine manner, उसी को हम कहेंगे पुरुषार्थ। और वही एक और तरीके से एक और वर्ड आता है आगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि मर्यादा मीन्स डिसिप्लिन, पुरुष मीन्स सोल, उत्तम मीन्स गुड। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहते हुए आप एक एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग, आप एक डिवाइन, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, सक्सेसफुल सोल, मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। And obviously, how do you try to invoke your real beauty? By working on your divine virtues. तभी हम उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। प्योरिटी, आपकी इनर प्योरिटी, आपकी इनर पीस, की ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ थोड़ा बहुत केओस भी है, बट आप अपने पीस ऑफ माइंड, अपने अंदर से बैलेंस विद पीस एंड विद अ पीसफुल एंड कंटेंटेड माइंड, अपने अंदर एक अनकंडीशनल लव, जैसे हम कहते हैं निष्काम भाव से काम करना, विदाउट एक्सपेक्टेशन, एक अनकंडीशनल लव। एंड इसमें आपको एक बहुत हैप्पीनेस मिलेगा जब प्योरिटी होगा, आप अंदर से बिल्कुल प्योर हैं, आप देयर इज़ नो सब्सटेंस ऑफ एनी एक्सपेक्टेशन और एनी अनप्लेजेंट डिज़ायर। आप मतलब यू आर प्योर इन एवरी वे ऑफ योर थिंकिंग, करेक्ट। तो आपको अपने आप में आपके लिए वो बहुत अच्छी शांति आपको मिलेगी अपने सारे काम करते हुए। एंड दिस विल इन्वोक द नेचुरल ब्यूटी ऑफ लव, एंड दिस विल गिव यू अ डिवाइन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, करेक्ट, एंड विच विल हेल्प यू टू अटेन ब्लिस while doing your daily chores, and obviously it will carry a divine power with itself. Yahi ho gaya sarvagun sampann, and obviously you will try to be a disciplined person, as Lord Krishna, symbolic of 16 celestial decrees complete, हम उनको अपना अगर आइडियल बनाए, करेक्ट, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, that is without any vice, correct, and ahimsa paramo dharma, that is non-violence, not only in our actions but also in our words and especially in our thoughts, correct. Purity, eternal purity, so that's eternal learning. And my dear friends, do you know what else do we learn from here? हमारे आज के टाइम में, you know, we use the word कृषि वर्ग। हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, किन के लिए यूज़ करते हैं कृषि वर्ग? दैट इज़ द फार्मर्स, करेक्ट। फार्मर्स के लिए हम कृषि वर्ग यूज़ करते हैं। अब फार्मर्स को हम ब्लैक, उनको हमने कृष्णा का टाइटल दिया, तो दैट मीन्स दे आर सो डिवाइन and such an integral section of our economy, of our society as a whole, if we consider it with a holistic approach, correct? तो इतना एक important aspect है ये, correct? Because my dear friends,
in today's society, farmers are actually one of the most neglected sections and one of the most deprived sections. That is, who are deprived of the basic necessity of even the basic necessities, and they are one of the most exploited sections. पर उनको हमने तो उनको कृषि वर्ग बोला, कृष्णा का टाइटल दिया, तो we need to invoke that much respect for them actually. वो तो हमें अन्न देते हैं, अन्नपूर्णा, and that's how we regard the ladies of a house, अन्नपूर्णा, जो सबको लाइफ दे रहे हैं. They are the life. जो हमारे घर में हमारे मदर्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, उनको हम अन्नपूर्णा कहते हैं. करेक्ट. जो खाना बनाते हैं, they give life to the whole house, the whole family. And if we consider this globe as one family, एक livelihood है ना पूरे ग्लोब पे, तो उनको कौन संभाले, कौन सस्टेन कर रहे हैं? फार्मर्स. तभी उनको कृषि वर्ग, तो उनको कान्हा का टाइटल दिया, कृषि, कृष्ण, कृषि वर्ग. So isn't it really divine कि वो ब्लैक, मतलब कि एक बंजर जैसी सोसाइटी को एक हरियाली सोसाइटी बना रहे हैं, ग्रीनरी बना रहे हैं, एक लाइफ दे रहे हैं, सबको एक फूड दे रहे हैं, जिसमें इतना पूरा कॉमर्स, ट्रेड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीकल्चर. करेक्ट. इट इज गिविंग लाइफ, लाइवलीहुड. Not only eatables to हैं obviously, but pura commerce, your entire textile industry, your entire trade is being possible because of the various crops which are being irrigated. So this is really divine, and ये हमारा एक beautiful lesson है एक कृष्णा की beautiful festival से. and हमने समझा हम कृष्णा को कृष्णा क्यों बोले. श्याम से सुंदर की एक beautiful story. So this is really divine. and एक और मीनिंग मिलता है. हम चलो राधा कृष्ण की हम बात करें तो राधा की भी बात करें. राधा, राधा क्यों गोरी, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला. अब राधा को गोरा क्यों बोला? कृष्ण ने हमें एक ब्यूटीफुल रास्ता बताया, हाउ टू बिकम सुंदर फ्रॉम श्याम. करेक्ट. With those 5 basic integral elements, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम. करेक्ट. अब राधा, तो हमने उसने हमें राह बताई, राह बताई, एक रास्ता बताया. जब हम उस रास्ते पे जब हम चलने लगते हैं ना, when we try to walk on that path, तो obviously we become fair. We become fair, मतलब FAIR, मतलब गोरा. राधा क्यों गोरी, तो हम एक राह पे चलने लगा. सोल बिकम्स वाइट. करेक्ट. तो वो वाइट बनने के पुरुषार्थ में चल पड़ी. करेक्ट. और तभी कहते हैं राधा और कृष्ण एक ही हैं. हम एक सोल के मोटिव से समझें, सोल एंड सुप्रीम सोल, कि हम उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इनकलकेट करें. सो I believe, personally, I believe this is the real essence of Bhagavad Gita, of how to do the karma yoga. अपने कर्मों में परमात्मा से योग लगा के हम कैसे उसको अपने डेली एक्टिविटीज़ में इनकलकेट करें एंड उसको हम जिएं. So that's the real essence, my dear friends. तो आप सबको जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं. कृष्ण की कोमलता, कृष्ण का नटखट भी, आई बिलीव कि उनका एक उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल रहस्य है कि आप अपने डेली चोज करते हुए, सबसे हंसी मेल मिलाप करते हुए, स्टेइंग चीयरफुल, डूइंग ऑल योर एक्टिविटीज इन अ प्लेफुल मैनर, इन अ चीयरफुल मैनर, आप कैसे अपने काम करें. आपको अगर if you have to work, if you have to live on the path of divinity, अपने सब काम करते हुए आप godliness के हम पाथ पे चल रहे हैं, which is the real essence of every festival, and यही एक every soul should try to inculcate. इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुनिया से हट के, दुनिया में रहते हुए, एवरीथिंग करते हुए, हमें बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, इट्स रियली सच अ डिवाइन थिंग. तभी हम कहते हैं को नटखट, एंड एट द सेम टाइम इटर्नल कनेक्शन विद द डिवाइन. And that's the motive of every soul, correct?
And this is such a divine feeling of independence from within, and real essence of festival of Janmashtami, the eternally beautiful festival. And that's how every festival is so divine, which is being celebrated across the universe around the year. And that's how we should take the learning from every festival across the globe throughout the whole year. God bless you. Happy Janmashtami.